होते हुए काफी टाइम लगा है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है और ये बार बार किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ अभी जी, वो जी, ओके। तो ओके साइमा साइम, अहमद की भी लाइट चली गई थी, तो वो भी अब दोबारा से कनेक्ट हो रही है। अच्छा तो हम ओके, एक दो ठीक मिनट ठीक। उसका वेट कर लेते हैं, वो जी कनेक्ट जी होती है बिल्कुल। तो फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते जी हैं। जी। जी। चलिए जी, साइमा अहमद ने कनेक्ट कर लिया है, डॉक्टर सलमा और डॉक्टर जी तलत भी कनेक्ट कर रही हैं आई थिंक। तो अब आप क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकती हैं। जी 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 ओके। सलमा प्लीज पूछें आप, जी प्लीज जी पूछें। ओके। Saima, you developed a scale, okay, obesity scale, and the scale consists of psychological, emotional, and cognitive factors, and I would say it's a contribution in the area of obesity. And it very clearly indicates that the psychological, cognitive, and emotional factors, they lead, they contribute to obesity. That in certain situations, working women or women, they are more likely to engage in overeating or I'm interested in knowing what type of questions you asked in when you conducted semi-structured interview with the obese women for developing the scale. In very few, one or two questions I would like you to share. जी मैम, जैसे आई स्टार्टेड विद वेरी जनरल क्वेश्चन, जैसे कि आप किन हालात में आप ज़्यादा खाना खाते हैं, आम रूटीन से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फिर उसमें से हमने उसको कनेक्ट किया कि कौन सी ऐसी आपकी ज़हनी हालत थी जिसमें आपने ज़्यादा खाना पसंद किया, किस तरह का खाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपकी कौन सी जज्बाती कैफियत थी जिसमें आपने ज़्यादा खाना और किस तरह का खाना खाना पसंद किया। क्या आप बेकरी की आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपको सब्जी या गोश्त ज़्यादा पसंद है, या आपकी इस तरह से मैडम जो थे, हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल थे जो हम Okay, or initially a large pool of items was जी generated. जी And then after being vetted by the experts, so आपके items जो हैं वो reduce हुए. अच्छा, previous literature, Saima, also indicates that with aging, there is an increase in obesity, whereas your findings have indicated no age differences between young and middle-aged obese working women. How would you explain this finding? Ma'am, there were different, there were two different point of views that were observed during the literature. It was seen that one एक side पे, I mean, some of the literature says there is an increase in obesity with age, and other than it was observed that some literature indicate that there is no difference or there is no increase in age. You can see from my discussion session, both type of literature is mentioned in the discussion session. Then some literature indicate an increase and some literature indicate there is no increase. Okay. And how would you explain the negative relationship between conscientiousness and marital relationship? Ji ma'am. If we see that the characteristics or
the qualities that are embedded in conscientiousness are they are more conscious about each and everything. They are dutiful. They are more to social norms. That is why they want each and everything to be done by their own personality. That is why the other person, that is the husband, that is the uh, life partner of that woman, cannot be the same as the woman want him to be. That is why crises are seen, and the quality of marital relationship decreases. Okay. So, what type of difficulties you faced since you have drawn data from 400 obese working women? So, what type of difficulties you faced in data collection? First of all, women were not accepting that they are obese. वो कहती थी हम obese हैं, हम नहीं करना, हम कोई मोटे हैं, अच्छा लो मैं तो नहीं मोटी, मैं किसी और से करवा लूं. ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो ये थी, जो थे वो पकड़ते ही नहीं थे क्वेश्चन को, क्योंकि अपने आप को मोटा समझना और एक्सेप्ट करना जो है वो बड़ी डिफिकल्ट बात है. So women, they try to carry themselves in a way that they should not appear obese, है ना? ऐसा भी तो होता है कि साइमा तो इस बात पे बहुत खुश हुई है कि ये बड़ी अच्छी important finding है, और इसी वजह से obesity is increasing, is on rise. Women generally don't accept, or their criteria of obesity is entirely different. जी मैम जी, it's true. अच्छा, एक मैं ये कहना चाहूँ, एक सजेशन है साइमा, आपने काफ़ी काम किया. मेरी सजेशन ये है कि मैं देख रही थी कि आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिए हुए हैं, तो दिस वेरिएबल कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अ फैमिली साइज. ठीक है, और फैमिली साइज का भी फिर आप कंपैरिजन जो है ना वो कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जो है मैरिटल सेटिस्फेक्शन एंड ओबेसिटी. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस नंबर 9 आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी जो है वो शो किया है, तो वो एक नल हाइपोथेसिस है. सो इट्स नॉट अ रिसर्च हाइपोथेसिस, आपने नो लगाया हुआ है उसमें. देयर विल बी नो डिफरेंसेस between scores between profession and obesity. So please correct it and make it a research hypothesis. जी मैम जी जी, ठीक है, उसको ठीक कर लो. So what are the limitations of your study? What are the limitations? लिमिटेशन मैम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिटेशन थी वो यही थी कि डाटा कलेक्शन वाज वेरी मच डिफिकल्ट, और अदर देन दैट ये लिमिटेशन थी कि आई वांटेड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अदर सिटीज ऑफ पंजाब एज वेल, बट इट वाज नॉट पॉसिबल और फिजिबल फॉर मी. और इसके अलावा ये लिमिटेशन थी कि जिन वुमेन ने रिस्पॉन्सेज दिए भी वो भी somehow हमें बहुत से क्वेश्चनर्स जो प्रोटोकॉल से उनको डिस्कार्ड करना पड़ा, as they were not considered as कि उन्होंने सीरियसनेस के साथ उसको रिस्पॉन्स दिया. अच्छा, आपसे डॉक्टर राफिया ने भी ये क्वेश्चन किया, तो आपको क्यों लगता है कि why is it so that the obese women are mostly found in teaching and in medical profession? Isn't it something very strange if it comes to medical profession? Obesity in medical profession, why doctors are obese? मैम लिटरेचर में भी यही बात जो थी ना, इट वाज एविडेंट फ्रॉम द लिटरेचर. ये किया ना, फिर आप लिटरेचर बेस्ड आपने सैंपल अपना डिसाइड किया कि आप इधर से जी मैम जी जी. तो आपने would you as a researcher suggest to teachers and doctors on this subject on obesity? क्या कहोगे? एक पर्सनल ओपिनियन मांग रही हूँ आपसे एज अ रिसर्चर, और वो ऐसा ही हुआ. बड़ा कुछ कहा जा सकता है इसमें तो टीचर्स को. स्टाफ रूम का कल्चर ही डिस्कस हो सकता है इसमें तो. लाहौर कॉलेज में तो बड़ा कल्चर है स्टाफ रूम के अंदर
पहली वाली 2 क्लासों के बाद जो है वो समोसे और पकौड़े आते हैं। जंक फूड जो है, जो एक ऐसा जंक फूड भी खाते हैं, वैसे भी अनहेल्दी। आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये जो प्रोफेशंस हैं, ये 2 प्रोफेशंस हैं, दे नीड टू चेंज देयर डाइटरी और पैटर्न। प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है और अनहाइजेनिक आपकी वो कैंटीन फूड जो है वो, और उसके बाद आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और आपकी कोई भी मोबिलिटी उसमें है नहीं है, और आप ईटिंग जो है वो अनहेल्दी कर रहे हैं, तो फिर वेट ही गेन होगा ना, फिर जाहिर वो बात। देखे ना, आप एज अ रिसर्चर तो सजेस्ट कर सकते हो कि अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स हैं इन 2 प्रोफेशंस में पाए जाते हैं, दैट इज व्हाई द फैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एंड इट इज डिपॉजिटेड। ठीक अब है। देखिए जैसे And it's पुलिस a में जो very important स्टाफ finding होता है, related to our organizations and related to our culture. ये बड़ी एक important finding है। देखिए जो पुलिस में स्टाफ होता है, जो पायलट्स होती हैं फीमेल्स, या इस तरह के जितने प्रोफेशंस हैं, उसके अंदर जो है वो वेट को मेंटेन रखना एक इंटीग्रल उनकी जॉब का पार्ट होता है। कि अगर इससे आपका बॉडी साइज आपका इससे ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर है कि वो आपको उस पर पनिशमेंट्स हैं या आपकी जॉब थ्रेट में चली जाती है। तो टीचिंग और डॉक्टर्स के लिए चूंकि ऐसा कोई अभी तक फॉर्मूला नहीं बना, दे आर फील फ्री टू बी ऑफ एनी साइज। Okay, well done. With this, I'm done. Congratulations, Saima. Thank you थैंक यू so much. सो मच डॉक्टर सलमा, आपने बड़ी इस मेहनत से सारा थीसिस देखा और आपने बहुत अच्छी सजेशंस और कमेंट्स किए, और जो आपने आइडेंटिफाई Thank you की so much. वगैरह भी वो सब साइमा अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर लेंगी। और जो डॉक्टर आफिया की सजेशंस थी वो भी बहुत वैल्यूएबल थी, वो भी जो चीजें जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो सब हम दोबारा से रिव्यू करके ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक है। मुबारक हो डॉक्टर साइमा। जी जी, बहुत साइमा मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। डॉक्टर तलत आपको भी, डॉक्टर आमना मौजम आपको भी, और साइमा आपको भी बच्चे बहुत मुबारक हो पीएचडी की कंप्लीशन की। थैंक यू so डॉक्टर much, आफिया। मैम। बहुत शुक्रिया राफिया। Okay, ji, thank you थैंक so यू much. मैडम। डॉक्टर आमना Thank you. मेरा ख्याल में बंद कर साइमा को अब मैंने देखा, Ramna. साइमा इज आवर स्टूडेंट आल्सो ना, फ्रॉम अप्लाइड से मेरा ख्याल में इसने जी पढ़ा मैम, मैं था। आपकी स्टूडेंट ही हूँ। अब तस्वीर आती है तो पता चलता है। चलो, बेस्ट विशेस फॉर अ वेरी गुड स्टार्ट आफ्टर योर पीएचडी। Thank you everyone. I Thank would you so also much. like to congratulate dear Dr. Saima Ahmad for completion of her PhD. Besides all the difficulties in her life, Alhamdulillah, she has managed to complete that. So Thank you so congratulations. much. And बहुत congratulations मुबारक हो to डॉक्टर डॉक्टर साइमा। तलत एज वेल, क्योंकि डॉक्टर तलत की हेडशिप में बहुत सारे हमारे माशाल्लाह स्टाफ ने पीएचडी की है। सो डॉक्टर तलत को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आमना आपको भी बहुत मुबारक। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह दे हैव डन इट। और अल्लाह पाक हम सबको खैर और आफियत से इस पेंडेमिक से निकाले और जल्द ये खत्म हो। आमीन। वो पहले वाला तो स्टूडेंट था, उसको तो हमने नहीं कहा, लेकिन साइमा तो स्टूडेंट के साथ हमारी फैकल्टी भी हैं। फैकल्टी साइमा भी है। को हम ये कहेंगे कि इनके ऊपर समोसे और चाय उधार है जो इन्होंने एक्सटर्नल्स को जी जरूर, नहीं, ये जरा पेंडेमिक खत्म हो तो आप एग्जामिनर्स को वैसे भी बुलाएं। इनकी दावत इंशाल्लाह। करेंगे, बिल्कुल इनकी दावत करेंगे। इनका लंच उधार है क्योंकि वो हमने इनको ना चाय पिलाई है ना लंच करवाया है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अनदर फेदर इन योर हेड डॉक्टर आमना, और अल्लाह मियां आप लोगों के डिपार्टमेंट को और तरक्की दे। हमारी पूरी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राफिया, और आप लोगों की बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट है जीसी की और पंजाब यूनिवर्सिटी की, स्पेशली आपकी, डॉक्टर सलमा की, डॉक्टर शाहिदा की, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमें बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया है। हमेशा हमारी जो डॉक्टर सलमा पीएचडी चेंजेस कमेटी की परमानेंट एक्सटर्नल मेंबर हैं, और हमने 3 साल के रिव्यू के बाद दोबारा इनको ही अपना मेंबर बना लिया क्योंकि इन्होंने हमारी इतना सर्व किया। दैट्स एन एक्सीलेंट सर्विस। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमें और मैडम तलत, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यू सपोर्टेड मी अ लॉट। डॉक्टर आमना ने तो माशाल्लाह किया ही है बहुत ही ज्यादा, एज अ सुपरवाइजर भी और एज अ टीचर भी, लेकिन मैडम आपने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आई एम रियली वेरी यू आर वेलकम साइमा। एमफिल में तुम मेरे पास थी और मुझे पता है कि तुम बड़ी कमिटेड डेडिकेटेड बच्चा हो, और पर्सनल डिफिकल्टीज को ओवरकम करना,
फादर की डेथ, आई नो challenges which are real challenges, ये कहना बड़ा आसान होता है, but you went through all of them. Of course your supervisor support was there, जी वो तुम्हें बैकअप करती रही, मोटिवेट करती रही, लेकिन जी ये कि बहुत ज्यादा पर्सनली आदमी बड़ा डिमोरलाइज होता है. सो गुड थिंग दैट यू कंप्लीटेड इट, और अल्लाह पाक आपको आगे भी खैर व आफियत से रखे बच्चे. थैंक यू सो मच. और डॉक्टर आमना मैं एक दफा फिर आपका भी बहुत ज्यादा मोस्ट थैंक्स करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा. जी थैंक यू शुक्रिया. सो मच. आपके बगैर ये वाज इम्पॉसिबल फॉर मी. थैंक यू. आपका शुक्रिया एक्नॉलेजमेंट का. अवैस साहब और जी कल मैंने यूनिवर्सिटी आना है. वैसा 11 सवा 11 डॉक्टर शुगुफ्ता वगैरह के साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग है. अगर कोई कागजों पे कोई साइन कोई चीजें, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके आपको ये सारा भिजवा दूँ. ठीक है मैडम. ठीक है. और डॉक्टर सलमा, आपको थीसिस के साथ एक परफॉर्मा मिला होगा इवैल्यूएशन का, जी, आप वो काइंडली फिल कर लें, फिर हम आपसे वो कलेक्ट करवा लेंगे. चलिए ठीक है, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. ठीक है डॉक्टर आमना, साहब एंड साइमा. जी डॉक्टर आफिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू साइमा गुलजार एंड अवैस साहब. जी मैडम, थैंक यू. थैंक यू साइमा गुलजार एंड अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया. वेलकम. जी थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.